Good morning, students. In today's class, we will learn about the further methods of preparation of haloalkanes and haloarenes. Okay. In a previous lecture, what we have learned about the how can we prepare haloalkanes through alcohols and through alkenes. Now, if as we know that there is some kind of reaction in which we cannot prepare iodoalkanes or we cannot prepare fluoroalkanes. Just for example, we have discussed already by the alcohols and by the simple your alkenes. When we add the alkenes, we cannot easily prepare the iodoalkanes and fluoroalkanes. So if we want to prepare iodoalkanes and fluoroalkanes, how can we prepare? So there is a specific reaction to prepare iodoalkanes and fluoroalkanes. What are that? That is a halogen exchange method. Actually, what this type of reaction? Halogen exchange method. Now, what do you mean by that halogen exchange method? Halogen exchange, it means one of the halogen groups already present in the carbon chain and we replace that halogen group by the iodo and fluoro halogen, simple. So there is two types of reaction in the halogen exchange gas. One is a Finckelstein reaction and other is a Swart reactions. Okay, so there is a two important name reaction through which we can easily prepare iodoalkanes or fluoroalkanes. So if we want to prepare these, so we will go with these two reactions, Finckelstein reaction and Swart reaction. And what is Finckelstein reaction and Swart reaction? Finckelstein reaction is basically used for the preparation of iodoalkanes. If we want to add a iodine group in the alkane chain, so we will go with the Finckelstein reaction. But if we want to prepare RF, fluoroalkanes, what is the reaction for that? Swartz reaction. So basically, Finckelstein reaction is the preparation for the iodoalkane, and the Swart reaction is a specific reaction through which we can prepare, जिससे हम क्या बना सकते हैं? Fluoroalkanes बना सकते हैं. Okay, so let's start. What is the Finckelstein reaction and Swart reaction? Simple. When we take any haloalkanes, obviously it is a halo exchange reaction, तो हमारे पास कोई ना कोई halogen group already present है. अब ये halogen group obviously क्या हो सकता है? ये halogen group या तो fluorine group होगा या फिर bromine group होगा, because iodine तो हमें add करना पड़ेगा. तो RX की जगह chlorine या bromine fluoroalkanes या फिर bromoalkanes we can easily take. Now, if fluoroalkane and bromoalkane if we take, what happens if fluoroalkane and bromoalkane we take and react with NaI? सोडियम आयोडाइड से हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं. स्पेसिफिक रिएक्शन है, इसका मतलब हमें इसी से ही रिएक्शन करानी है और ऑब्वियसली हमें आयोडीन ग्रुप ऐड करना है, तो सोडियम आयोडाइड लेंगे. We can also take Ki instead of sodium iodide. We will also use potassium iodide in the presence of diacetone. Why we take diacetone? We will discuss that. What happens actually in this reaction? This NaI here, from this NaI, this Na group and this X group. NaX, this will be removed as a NaX. If it is here Cl group, what is removed? NaCl removed. If it is Br, what group removed? NaBr. And simple R and I will be formed. It means Cl is replaced, exchanged by the iodine group, what जो हमें चाहिए. Basically, why we use NaI or Ki and why we cannot use here NaCl and NaBr? Because this NaI is easily soluble in the dry acetone. सोडियम आयोडाइड जो है वो क्या है? ड्राई एसीटोन में क्या हो जाता है? सॉल्युबल हो जाता है. तो जब ये सॉल्युबल हो गया, इट मींस हमें मालूम है इट इज आयोनिक कंपाउंड, और जब ये डिसॉल्व होगा तो इट विल बी डिसोसिएट इनटू इट्स आयन, सोडियम आयन एंड आयोडाइड आयन. वेयर एज यदि हम कंपेयर करें, इसकी जगह हमने NaCl और NaBr ले लिया, तो कंपैरेटिवली यदि हम बात करें NaCl और NaBr की, तो NaBr और NaCl, सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम ब्रोमाइड आर लेस सॉल्युबल और बहुत कम सॉल्युबल होते हैं ड्राई एसीटोन में, तो दे विल बी प्रेसिपिटेट आउट. तो सॉल्युबल नहीं है तो वो क्या करेंगे? वो हमें प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे. तो इसीलिए हम इस रिएक्शन में सोडियम आयोडाइड यूज करते हैं और NaCl या NaBr हमको जो मिलेगा, बिकॉज ड्राई एसीटोन में वो सॉल्युबल नहीं है, तो एज दे आर फॉर्म्ड वो क्या हो जाएंगे? दे विल बी प्रेसिपिटेट इन द रिएक्शन मिक्सचर. दूसरा ये हमारे को क्या क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे रिएक्शन? As we know, there is a Le Chatelier principle. Le Chatelier principle
क्या कहता है, हमने 11th में पढ़ा है कि रिएक्शन हमेशा उस जगह फॉरवर्ड होती है जहां पर क्या है, जहां पर हमारे पास जो रिएक्टेंट है या जो प्रोडक्ट है जिस साइड में जो है वो चेंज जो है वो ज्यादा होगा। तो यहाँ पर क्योंकि NaCl बनेगा या NaBr बनेगा तो क्या होगा, इस रिएक्शन में ये प्रेसिपिटेट आउट होंगे, यानी कि रिएक्शन क्या होगी, ये क्या होगा, कम होते जा रहा है। तो रिएक्शन क्या चाहेगी कि मेरी फटाफट से और क्या बने, NaCl या NaBr बनते जाए, इसलिए ये रिएक्शन और ज्यादा क्या होगी, तेजी से या स्पीड अप होगी या फास्ट फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। तो NaCl और NaBr का प्रेसिपिटेट होना ऑल्सो ली शेटेलियर प्रिंसिपल्स को भी क्या कर रहा है, फॉलो अप करता है। सेकेंड, यदि हम बात करें SWOT रिएक्शन की, तो हमें इफ वी वांट टू प्रिपेयर RF फ्लोरोएल्कीन्स यदि हमें बनाना है तो हमें क्या करना है, ऑब्वियसली वी विल टेक हेलोएल्कीन्स, क्योंकि हेलोजन एक्सचेंज की प्रिपरेशन है तो हम कोई भी RX या RCl या RBr लेंगे। ओके, इन दिस रिएक्शन वी कैन आल्सो यूज RI, बट जनरली हम RI इतना अवेलेबल नहीं है तो हम जनरली क्लोरीन एंड ब्रोमीन ही लेते हैं। तो जब हम हेलोएल्कीन्स, फ्लोरोएल्कीन्स या ब्रोमोएल्कीन्स की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, मेटलिक फ्लोराइड्स के साथ, किससे करा रहे हैं, मेटलिक फ्लोराइड्स, लाइक सिल्वर फ्लोराइड, कोई भी मेटलिक फ्लोराइड हम ले सकते हैं, बट दिस मेटलिक फ्लोराइड शुड बी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। सिल्वर फ्लोराइड हम ले लेते हैं, क्वार्ट्ज फ्लोराइड हम ले सकते हैं, मर्क्यूरी फ्लोराइड्स हम इसमें यूज करते हैं। तो जब हम इनकी सिंपल रिएक्शन करा रहे हैं विद मर्क्यूरी फ्लोराइड, व्हाट हैपेंस, दिस AgCl will be removed by AgX. If we take Cl तो AgCl remove होगा, if we take bromine तो AgBr remove होगा, and this fluorine would be attached. So this fluorine would be exchanged by this fluorine and bromine group. This is known as SWOT reaction. It is the name of the scientists, on the basis of that their name is named as Finkelstein and SWOT reaction. अलग अलग साइंटिस्ट के नेम भी दोनों रिएक्शंस दे रखे हैं। तो by these some methods we can easily prepare the haloalkenes. Okay, this is all about the simple halogen exchange, और हम बात कर सकते हैं haloalkenes की preparation methods. Now our topic is preparation of haloalkane as well as haloarine. It means हमें haloarenes की भी बात करनी है। तो haloarenes also prepared by the alcohols also, जहाँ हमारे पास आ सकता है हम उसकी जगह बेंजीन रिंग को भी अटैच कर सकते हैं, बट there are the some specific reaction जो बिल्कुल क्या है, स्पेसिफिक है, जिनसे हम सिर्फ क्या बनाएंगे, हेलोएरीन्स ही बना सकते हैं। वो कौन कौन सी रिएक्शन है, एज वी नो दैट कि हेलोएरीन्स में क्या होगा, एक बेंजीन रिंग होगी, और वी नो दैट, वी लर्न ऑलरेडी, वी नो इन द क्लास लेवल कि बेंजीन हमेशा कौन सी रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट मींस वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करके बेंजीन रिंग में से हाइड्रोजन को क्या करता है, रिप्लेस करता है, सब्स्टिट्यूट करता है। तो दे आर टू इंपॉर्टेंट रिएक्शंस व्हिच वी कैन इजीली prepare the haloalkene. First method is electrophilic substitution reaction, and second is the name reaction, very important reaction. This reaction further comes in the upcoming chapters. तो ये हमारे को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी, Sandwich reaction, Betterman reaction, बहुत सारे हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिंपल रिएक्शन है, हमारे पास कोई ना कोई इलेक्ट्रोफाइल्स होगा दैट विल बी रिप्लेस्ड। तो अब हमारे को ऑब्वियसली बेंजीन हेलोएरीन्स बनाना है, और हेलोएरीन्स बनाना है इसका मतलब हमें X ग्रुप ऐड करना है, ठीक है, X ग्रुप को हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट करना है। तो हाउ कैन वी सब्स्टिट्यूट, कि हम इस बेंजीन की बेंजीन रिंग ले सकते हो या टॉलिन लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको क्या लिया, टॉलिन लिया। व्हाट इज टॉलिन, जब बेंजीन के ऊपर क्या ग्रुप अटैच होता है, बेंजीन के पास अटैच होता है हमारे पास सिंपल CH3 molecule, if it is attached, then we will call it as a toluene. So basically what happens, if we take toluene and react with X2, any halogen group is there, or in the presence of iron, dark में आयरन के साथ रिएक्शन करा सकते हैं, और हम इसकी रिएक्शन कोई भी लुईस एसिड से करा सकते हैं which contain halogen, क्योंकि हमें हाइड्रोजन अटेंड करना है, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कराएंगे, और कोई भी लुईस एसिड जैसे AlCl3, FeCl3 वो भी हम रख सकते हैं। तो होगा क्या, हमें मालूम है AlCl3, हम ऑलरेडी मैकेनिक्स पढ़ के आ चुके हैं 11th में कि AlCl3 या लुईस एसिड है, ये एसिड है, इसका मतलब ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। तो ये AlCl3 एक्चुअल में क्या करते हैं, ये AlCl3 जो है वो क्या करेगा, जो हमारे पास X2 है उसमें से मान क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन को अपने पास लेगा, क्योंकि ये कैसा है, लुईस एसिड है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट
पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, थ्री लोन पेयर्स, और ये किसमें चेंज हो जाता है, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द AlCl4 माइनस एंड plutonium ion, Cl positive ion will be formed, and this Cl positive will be attacked on the benzene ring. Okay, तो basically this is the mechanism हम डाटा डिटेल इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि ऑलरेडी हमारे 11th में आ चुका है मैकेनिज्म। तो हमें मालूम है कि बेंजीन रिंग पे जब भी कोई लुईस एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ग्रुप ऐड करना है तो देयर इज अ क्लोरोनियम ब्रोमोनियम आयन इज फॉर्म एंड दे विल बी अटैच्ड। अब जब हमने यहाँ पे मालूम सिर्फ बेंजीन रिंग ली होती तो ऑब्वियसली क्या होता है, ये एक्स ग्रुप कोई भी एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करके वहां पे क्या होता एज अ एक्स अटैच हो जाता है। क्या जब हमने यहाँ पे क्या लिया है, कोई भी बेंजीन रिंग लिया कि हमने ले ली तो क्या होता है यहाँ पे सिंपल इट विल बी फॉर्म एक्स हेलो एरिन सल्फर बट वी विल टेक एज अ टॉलिन। तो टॉलिन ऑलरेडी इस पोजीशन पे है तो क्या हाइड्रोजन ग्रुप कहां कहां जुड़ जाएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर it will be attacked by the simple mechanism of the electrophilic substitution reactions. Okay, now what we have to how can we separate it? क्यों हमारे लिए important है, क्योंकि ऑर्थो और पैरा जो हाइड्रोजन ग्रुप्स हैं, ऑर्थो या पैरा डायरेक्टिंग एरिन्स हैं, उनकी मेल्टिंग पॉइंट्स में बहुत डिफरेंस है। तो हम इनको इजीली क्या कर सकते हैं, सेपरेटेड आउट कर सकते हैं। तो हमें ऑर्थो हेलो एल्केन्स और ऑर्थो हेलो एरीन्स और पैरा हेलो एरीन्स जो वो इजीली क्या होते हैं, separated out there. So this is the one of the best method for the preparation of haloarenes. हमेशा याद रखना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन पे होगा ही होगा। नेक्स्ट है दूसरी सैंडविच रिएक्शन। It is a name reaction. Others say the scientist who gives this reaction is known as, that's why it is known as Sandwich reaction. What is the actually Sandwich reaction? Sandwich reaction is specific for diazonium salts. तो यहाँ पर एक वर्ड आया हमारे पास डायएजोनियम सॉल्ट। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि डायएजोनियम सॉल्ट्स होते क्या है। तो व्हाट इज डायएजोनियम सॉल्ट? व्हेन two nitrogen are combined and when any halogen group is there with any alkenes group, तो ये जब दो नाइट्रोजन ग्रुप्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं और एक ऑर्गेनिक सॉल्ट्स बनाते हैं तो ऐसे सॉल्ट्स को हम क्या बोलते हैं, दे विल नोन एज डायएजोनियम सॉल्ट्स। तो बेसिकली सैंडविच रिएक्शन जो है वो किसकी स्पेसिफिक या किसके लिए रिएक्शन है, डायएजोनियम सॉल्ट्स के लिए रिएक्शन। तो हमें सबसे पहले डायएजोनियम सॉल्ट्स को प्रिपेयर करना चाहिए। हाउ कैन वी प्रिपेयर डायएजोनियम सॉल्ट? हम जब बेंजीन के ऊपर अमाइन ग्रुप लेते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमनली इट इज नोन एज एनिलीन, और यदि हम इसका एसआईपी से नेम लिखेंगे तो इट इज बेंजेमाइन। तो जब हम इस बेंजेमाइन की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, सोडियम नाइट्रेट प्लस HX, जो भी हमें हैलोजन ग्रुप अटैच करना है, Cl अटैच करना है तो इट विल बी XCl, जब हमें ब्रोमीन ग्रुप अटैच करना है तो हम X से लेके ब्रोमीन ले लेंगे। तो NaNO2X की प्रेजेंस में हमेशा क्या होता है, ध्यान रखना, हमेशा इट मींस इन ऑल द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहां भी NaNO2 प्लस HX आ गया इट मींस आपके पास जो फॉर्म होगा वो क्या फॉर्म होगा, HNO2, नाइट्रस एसिड फॉर्म होता है। यानी इन दोनों के रिएक्शन से हमेशा क्या बनता है, नाइट्रस एसिड होता है। और इस नाइट्रस एसिड से हमेशा नाइट्रोनियम आयन फॉर्म्स होते हैं। और जब ये नाइट्रोनियम आयन इस बेंजीन रिंग पे कहां अटैक करते हैं, अमाइन ग्रुप पे अटैच करते हैं, तो ये क्या करता है, यहाँ से ऑलरेडी हमारे पास नाइट्रोजन ग्रुप है, एक नाइट्रोजन ग्रुप और है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, इसके पास लोन पेयर है, इन दोनों के लोन पेयर से क्या होती है, वापस में एक रिएक्शन होती है और हमारे क्या मिलता है, डायएजोनियम सॉल्ट। क्या मिलता है, डायएजोनियम सॉल्ट, क्योंकि हम यहाँ पर एक्स ऑलरेडी ले रहे हैं। तो हमारे पास डायएजोनियम सॉल्ट आ गया। कब आएगा, हमेशा ये ध्यान रखना, अमाइन सॉल्ट जब हम HNO2 NaNO2 या HCl, कई बार हमारे को क्योंकि HNO2 हम डायरेक्ट नहीं लाते इस रिएक्शन में, हम हमेशा HNO2 नाइट्रस एसिड को हमेशा किस फॉर्म में रिएक्शन करने में लाते हैं, विद द रिएक्शन ऑफ सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां भी ये आ जाए इसका मतलब हमें HNO2 यूज किया है, हमने HNO2 बना के इस रिएक्शन को फॉरवर्ड किया। तो हमारे पास क्या मिलता है, डायएजोनियम सॉल्ट, as you see N2 and X, so it is a diazonium salt, benzene diazonium salt is formed। अब इस बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन जब हम किसी भी कॉपर क्लोराइड के साथ या के साथ करा देते हैं, कॉपर क्लोराइड के साथ करा दो या कॉपर ब्रोमाइड के साथ करा दो, किसी के साथ भी करा दिया, तो सिंपल क्या होगा, यहाँ से this N2 gas is removed and haloarenes are formed।
तो दिस इज द सैंडमेयर्स रिएक्शन। इसका जो मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को डिटेल में हम बात करेंगे डायज़ोनियम सॉल्ट्स में। क्यों? क्योंकि ये डायज़ोनियम सॉल्ट्स हमारे पहले पढ़ने पड़ेंगे कि ये किस तरह की रिएक्शंस दे रहा है। तो डिटेल मैकेनिज्म जो है वो हम फर्दर जो हमारा चैप्टर है डायज़ोनियम सॉल्ट्स, वहां पर इस रिएक्शन को वापस गो थ्रू होंगे, वहां इसका पूरा मैकेनिज्म हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी के लिए हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, हाउ कैन वी रिमेंबर कि भाई बहुत सारी नई रिएक्शन आएंगी, तो हाउ कैन वी रिमेंबर सैंडमेयर्स रिएक्शन। तो हम सिंपल से इससे याद कर सकते हैं कि मेयर जब सैंड के अंदर, मेयर जब सैंड के अंदर घूम रहा है तो उसके ऊपर उसको क्या दिया है, दिया 20 मिनट्स का, देखो डाइएज़ोनियम। तो हम इस डाइएज़ोनियम को क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं, दिया 20 नियम। तो उसने क्या किया, जब वो सैंड मेयर जो है, मेयर जब सैंड्स के अंदर लोड को डोराया, कुछ भी कर रहा है, मूव कर रहा है, तो सिंपल हम ये बोल सकते हैं कि याद कैसे कर सकते हैं कि मेयर जब सैंड के अंदर घूम रहा है तो उसको उससे 20 नियम्स का क्या कर दिया गया है, 20 नियम्स के 20 नियम्स दिए गए। तो 20 नियम्स दिए, नियम 20 दिए, इसको जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या है, दिया DIA इज फॉर दिया, ZO इसको आप मान लो 20 नियम। तो 20 मिनट्स के नियम दिए गए। तो दिस इज सैंडमेयर्स रिएक्शन। इसमें यानी कि डायज़ोनियम सॉल्ट्स बनेगा, और इस डायज़ोनियम सॉल्ट्स की रिएक्शन जब हम कॉपर क्लोराइड्स के साथ या कॉपर हैलाइड्स के साथ कराते हैं तो हमारे को हैलोएरिन्स मिलता है। This is all about the preparation method of the haloalkanes and haloarenes. In the next lecture, we will learn about the physical property and start the chemical properties of haloalkanes and haloarenes. Thank you.